I'm going to expose the BJP government's latest PR campaign in the next 2 minutes. So, Chief Minister Rekha Gupta inaugurated 18 oxygen parks in Delhi, marketing them as a big move to combat Delhi's air pollution and increase the capital's green cover. So, these have been branded as the Namo Oxygen Parks. The reality behind these so-called oxygen parks will shock you. So, make sure you watch this video till the end. These trees with the Namo branding aren't being planted by the government out of their own will. These are trees that the government was anyway bound to plant as a penalty for an earlier illegal act. The Supreme Court had last year ordered the Delhi Development Authority to plant these trees as a compensation for the illegal cutting of trees under the former Delhi Lieutenant Governor, who was appointed by the BJP-led government at the centre. 1,100 trees were illegally cut in this ridge area in violation of the Supreme Court orders. This was done to widen the very road I am standing on, which leads to the Central Armed Forces Police Institute of Medical Sciences. Now, following this, 185 acres of land was allotted to the government's forest department under Supreme Court orders for compensatory afforestation to make up for the government's illegal tree felling. Now, when Peak TV checked the sites where the Rekha Gupta government has announced its Namo Oxygen Parks, we found that these are the very same sites allotted for compensatory afforestation in the 2025 case against the Delhi Development Authority. All 18 sites listed in a report submitted to the Supreme Court match the 18 sites where the oxygen parks have been inaugurated. From Maidan Gadi, where I am standing, to Narela, Pansali and Satbadi, every site where the DDA is carrying out plantation to compensate for the government's illegal tree felling is now being branded as the government's flagship environmental initiative on World Environment Day. Now, indeed, the government has announced that it will create 100 such oxygen parks and plant 15 lakh trees this year. That is a welcome move. But the so-called oxygen parks that have already been inaugurated are not born out of the government's own initiative. They are simply a penalty being repackaged as a government initiative. Does this not amount to the government misleading the public? Tell us what you think in the comments. Share this video with all Indians and follow Peak TV for more such investigations. नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं पीक टीवी के वेदांत अग्रवाल। ये जो शुरुआत में 2 मिनट का आपने एक प्रदर्शन देखा, ये पीक टीवी की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, अंग्रेजी में है। और जब ये रिपोर्ट देखी तो मैंने मेरे पूर्व सहयोगी और साथी वेदांत से ये गुजारिश की कि इसको हिंदी में भी हम दर्शकों के लिए लेकर के आएं। इस रिपोर्ट से मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि शायद कुछ ब्रांडिंग की गई है, शायद एक चोरी जब पकड़ी गई और सजा दी गई तो उस सजा में मजा लेने का प्रयास किया गया, उस सजा में पीआर करने का प्रयास किया गया। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन स्कैम हुआ, हरियाली स्कैम हुआ, नमो ऑक्सीजन पार्क बोल करके क्या किया गया? आप पेड़ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन पेड़ लगाने के पीछे की आपकी मंशा क्या थी, मकसद क्या था और क्यों? ऐसा नहीं है कि आप पेड़ लगा रहे हैं, आपसे पेड़ लगवाए गए। क्या ये है पूरी कहानी? वेदांत से अब समझेंगे। वेदांत के पास दस्तावेज भी हैं, वेदांत के पास अपनी रिसर्च भी है। वेदांत, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि पहले आप जरा हिंदी में समझाएं दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है। थैंक यू सर। तो अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने दिल्ली में 18 ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट करे। उन्होंने ये बोला कि ये कुछ पार्क्स क्रिएट करेंगे हम, जहाँ पर कुछ पेड़ लगाए जाएंगे अलग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। तो हमने जब ये इनिशिएटिव और इसके बारे में पढ़ा तो हमें लगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वेलकम इनिशिएटिव है, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार की जो आलोचना होती है वो ये होती है कि प्रदूषण की बात और पर्यावरण की बात केवल विंटर्स में की जाती है, केवल सर्दियों में की जाती है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है वो पर्यावरण, पेड़ लगाने की बात और प्रदूषण की बात गर्मियों में भी कर रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लगा। फिर जब हमने एनवायरमेंटलिस्ट से काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करी इस बारे में,
तो फिर हम उस पिटिशनर तक पहुंचे जिस पिटिशनर ने ये केस किया था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। ये केस क्या था एग्जैक्टली अगर आपको याद होगा तो बहुत आलोचना भी हुई थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि 1100 पेड़ जो रिज एरिया है, दिल्ली का जो रिज इलाका है, वहां पर 1100 पेड़ काटे गए थे। और ये पेड़ इसलिए काटे गए थे क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये एम्स की ही एक विंग है आर्म्ड फोर्सेस की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इस इंस्टीट्यूट की जो अप्रोच रोड है, जो रोड इस इंस्टीट्यूट के बाहर है, उसको चौड़ा करने के लिए ये 1100 पेड़ काटे गए थे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था। और जो उस समय एलजी थे दिल्ली के, वीके सक्सेना, अच्छा जो एलजी होता है वही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन भी होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, एक ऑटोनमस बॉडी है, और ये इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो दिल्ली के एलजी होते हैं। तो दिल्ली के एलजी ने ये 1100 पेड़ काटने का अप्रूवल दिया था इस रोड को चौड़ा करने के लिए। उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि ये कंटेम्प्ट केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के भी ऑर्डर्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि इस तरीके की ट्री फेलिंग ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, तब दिल्ली के पूर्व एलजी वीके सक्सेना ने ये बयान दिया था कि मुझे पता नहीं था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है पेड़ काटने से पहले। तो वो कहीं ना कहीं एक एडमिशन था कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1100 पेड़ काटे हैं। अब उसमें उन्होंने कुछ और नंबर बोला था और सुप्रीम कोर्ट में कोई और नंबर चला था, लेकिन मोटा मोटी बात ये थी कि 1100 पेड़ दिल्ली में कटे थे, जो कि अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश है उसके खिलाफ है। तो ये जब हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ये बोला गया कि अब हम आपको कुछ लैंड देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये लैंड जो दिल्ली गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम कुछ लैंड देंगे, जहां पर उन 1100 पेड़ को काटने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसकी मतलब उसको हम कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम आपको लैंड देंगे। 1100 पेड़ आपने काटे हैं, अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसकी पनिशमेंट में आपको जो है ये पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ लैंड देंगे। अब मैं आपको ये वो ऑर्डर भी यहाँ पर दिखाता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें आप ये देखेंगे हाँ, आप कि ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ऑर्डर भी दिखा दीजिए, और उसके बाद फिर आगे की भी प्रक्रिया आप जी दिखा सकते हैं जी। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट में एक सेकंड जी इंतजार कीजिएगा, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। जी ये लीजिए। तो ये डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये बताते हुए कि क्या आगे कार्रवाई हुई है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत लैंड अलॉट हो गया है, जो 1100 पेड़ हमने काटे थे उसकी जगह हम ये पेड़ लगाएंगे अब, तो उसकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है, क्या उस पर कार्रवाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द डीडीए इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 28 मई 2025। तो अब डीडीए ने ये तमाम जो साइट्स हैं जो लैंड अलॉट हुआ है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि एक हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी डीडीए के साथ काम करेगी और जो ये लैंड है उसका जाके इंस्पेक्शन करेगी, वहां पर जाके ये देखेगी कि ये लैंड इन पेड़ों को लगाने के लिए सही है कि नहीं, क्या वहां पर कुछ कमियां हैं, वो सारी हम वहां पर जाके पड़ताल करेंगे। तो ये करने के बाद जब उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, तो उसके बाद उस स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने 18 साइट्स फाइनलाइज करी, 18 साइट्स उन्होंने तय करी जहां पर ये पेड़ लगाए जाएंगे। ये सारी साइट्स अब आप इसमें आप देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ लैंड ट्रांसफर्ड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी कि जो हमने 1100 पेड़ गिराए थे उसकी जगह जो हमें पेड़ लगाने हैं, उन पेड़ों को लगाने के लिए हमने ये सारे इलाके तय किए हैं और ये सारे इलाकों में पेड़ लगाया जाएगा। तो ये उनकी डिटेल है, इसमें तमाम जगह है, बरवाला है, पंसाली है, इसमें प्रहलादपुर है, शाहपुर, अलीपुर, मैदानगढ़, ये सारी 18 साइट्स, और ये 185 एकर्स का ये लैंड था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया था, और ये फाइनलाइज्ड सारे नाम है उन साइट्स के जहाँ पर पेड़ लगाया जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ अब आप दिखाता हूँ, ये आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ।
अ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। जो आप करना चाहें। अब आप अगर देख पा रहे हो। हाँ अभी आएगा, एक सेकेंड। जी। क्योंकि अभी तक तो हमने देख लिया कि कौन सी वो 18 साइट्स थी जो डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताई थी कि ये साइट्स हमने फाइनलाइज करी है, इन इलाकों में हम जो हमने पेड़ काटे उनकी जगह हम पेड़ लगाएंगे, ये बात है। अब आप डेट भी, ये डेट है 28 मई को रिपोर्ट फाइल की। अब जून में ये जो आप देख रहे हैं, जून 2026 में जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मिनिस्टर, उन्होंने ये ट्वीट किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा, ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया कि हम 18 साइट्स पर ऑक्सीजन पार्क अनाउंस कर रहे हैं। अब ये सारे इन्होंने डिटेल दी है कि ये कहाँ कहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा ऑक्सीजन पार्क के अंदर। अब इन सारी साइट्स को अगर आप देखें, शाहपुरगढ़ी, नरेला, बरवाला, बंसाली, प्रहलादपुर, ये वही साइट्स हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको उस डॉक्यूमेंट में दिखाई। ये सारी वही साइट्स हैं, अलीपुर। और अब वापस अगर डॉक्यूमेंट में भी हम जाते हैं फिर से, तो भी आप एक मिनट में एक काम करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट हाँ को। वो करके देख सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देखा हुआ है, एक बहुत क्लियर आइडिया यहाँ दर्शकों को मिल गया है। वेदांत क्या समझाना चाह रहे हैं दर्शकों, आप वो समझिए कि ये बोला गया कि इसका फ्रंट पेज दिखाइए, फर्स्ट पेज। आप देख एक रहे हैं सेकेंड। दिल्ली सरकार, ये जो डॉक्यूमेंट है मनजिंदर सिंह सिरसा का, इसका आप एकदम फर्स्ट पेज देखिए। 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का हुआ लोकार्पण। विश्व पर्यावरण दिवस और पर दिल्ली को मिली बड़ी सौगात। वेदांत अपनी रिपोर्ट में ये एक्सपोज कर रहे हैं कि ये जो सौगात बताई जा रही है, ये दरअसल सजा थी। आप सौगात तो तब करेंगे जब आप कुछ नया कर रहे हो। ये तो आपने काट दिए थे पेड़, और बतौर सजा आपको ये बोला गया कि आप पेड़ वापस लगाइए, और वो वही जगहें जहां आपको पेड़ लगाना था, जो चिन्हित की गई थी, उनको आपने ऑक्सीजन पार्क और सौगात की तरह और लोकार्पण ऐसे करके प्रस्तुत किया। तो ये एक अपने आप में एक, जिसे कहते हैं ना कि पीआर एक्सरसाइज कर दिया आपने। अपनी सजा को आपने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया। वेदांत। जी, और बहुत लोगों का इस पे यही कहना था कि ये एक तरह से मतलब उन्होंने आपदा में अवसर, और इन्होंने इस चीज़ का कहीं पर ज़िक्र नहीं करा अपने पूरे। रेखा गुप्ता ने भी वहाँ पर भाषण दिया, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भी, तो किसी ने ये ज़िक्र नहीं करा कि ये हम किस लिए लगा रहे हैं। ये कोई उनके अपने इनिशिएटिव से नहीं आया था, ये एक्चुअली ये दे वर बाउंड टू डू दिस, क्योंकि एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कही थी कि ऐसे टाइम पर ये पेड़ लगाए जाए कि जो मॉनसून सीजन है उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो सके। आप मॉनसून आए, बारिश का मौसम आए, उसके पहले ही पेड़ अगर लग जाएंगे तो हम मॉनसून का पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए ये जून के महीने में लगे पेड़, ताकि जुलाई में या जून एंड में जब तक मॉनसून आए तब तक उसका उस सीजन का पूरा यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसा नहीं है कि ये अभी जून में पेड़ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हम जब तक विंटर तक पहुंचे तो कुछ पेड़, मतलब हम समर में भी और विंटर के बाहर भी पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये अभी इनको लगाना ही था क्योंकि मॉनसून के पहले ये पेड़ लगने ही थे। तो ये और ये एलजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये भी हमें हाईलाइट करना चाहिए कि जो दिल्ली एलजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की खुद की ही गलती थी, जिसको अब वो रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये पेड़ लगाए हैं। और ये उसको नमो ऑक्सीजन पार्क नाम दे दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की खुद के दिमाग से या उनके पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि हम ऐसा काम करें ताकि विंटर तक हम कुछ पेड़ लगा पाए, या क्योंकि बार बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एफॉरेस्टेशन जो है या पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का। तो आप पेड़ लगाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड करना है कि ये हमने सोच के नहीं, हमारी सोच से नहीं निकला है, ये सजा है जो कोर्ट ऑर्डर्ड कमिटी ने बोला था कि आपको करना है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि हम ऐसे 100 और हम टोटल 100 ऑक्सीजन पार्क बनाएंगे और 15 लाख पेड़ लगाएंगे, 15 लाख पेड़ों का रोपण करेंगे। तो अगर वो होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो 18 उन्होंने चूज किए वो वही है जो डीडीए रिपोर्ट में ऑलरेडी साइट्स उनको सजा के तौर पर वहां पर पेड़ लगाने ही थे। वेदांत, तो ये तो घपला हुआ ना।
ये तो घपला हुआ, ये तो आप बोल कुछ और रहे हैं और सच्चाई कुछ और है। अब आप इसको ठीक है स्कैम नहीं बोलना चाहते, पीआर एक्सरसाइज कुछ भी, लेकिन आप बेसिकली इट इज अ डिसऑनेस्ट एक्सरसाइज। आप दिल्ली में यह प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन पार्क ऑलरेडी था, पहले तो आपने उस पार्क की बार काट दी, और उसके बाद जब आपको कोर्ट से सजा हुई तो उसके बाद फिर अब आप ये कर रहे हैं। तो ये तो घोटाला है, ये तो घपलेबाजी है। जी, और इसी तरह से जैसे और भी एनवायरनमेंट रिलेटेड हमने देखा है, जैसे एक्यूआई मॉनिटर्स के सामने पानी छिड़कना, वो भी लास्ट ईयर विंटर पोल्यूशन में हमने देखा था कि किस तरह से एक्यूआई रीडिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। तो जैसे कि आपने कहा कि ये कोई इसमें मतलब ऐसे देखा जाए तो कोई करप्शन या वैसा स्कैम नहीं है, लेकिन ये डिसऑनेस्ट है। इस पे इंटेग्रिटी पर सवाल उठ सकते हैं, गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी पर, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये पहली एक सरकार आई है जो पर्यावरण के बारे में सोच रही है, लेकिन आप नहीं सोच रहे, आपको सोचने पर मजबूर किया गया क्योंकि आपने पहले एक इलीगल काम किया था, अनऑथराइज्ड काम किया था पेड़ों को काटने का, और उसके कॉम्पेंसेशन में आपको ये पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से ये जो है, ये उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए जाएंगे, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल, बात नियत की है, और ये आपकी रिपोर्ट में बखूबी एक्सपोज हुआ, ये देखने को भी मिला। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में जो पता चला है, डीडीए के जो बॉस होते हैं, यानी कि उस समय के एलजी, उनका ये फैसला था, और उसके बाद अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र के मंत्री के साथ मिलकर के नमो पार्क का उद्घाटन किया विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो कायदे से ये जो रीब्रांडिंग है, ये केंद्र सरकार ने की है, डीडीए ने की है, या फिर दिल्ली सरकार ने की है? देखिए, ये जो पेड़ लगाने का कार्य दिया गया था, ये डीडीए को दिया गया था। लेकिन अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे डीडीए हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, अब सब कुछ बीजेपी के अंडर है। क्योंकि जैसे कि बार-बार ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि अब हमारी दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि वो केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ तक कि एमसीडी में भी अब मेयर दिल्ली का ही है। तो इसलिए क्योंकि हर लेवल पर बीजेपी है, इसलिए ये कौन कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो डीडीए है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत तो ये काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। और अगर आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट देखेंगे, वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, एलजी उनके चेयरपर्सन है, और उसमें आप एलजी की और रेखा गुप्ता की फोटो देखेंगे, उस पर लगी हुई है। तो डीडीए ये काम कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ है जो दिल्ली सरकार के अंडर है। तो क्योंकि अब सब जगह बीजेपी है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली सरकार ने किया है कि डीडीए ने किया है। डीडीए ये काम कर रही है, लेकिन ये जो उद्घाटन हुआ है उसमें रेखा गुप्ता जी ने जाके उद्घाटन किया, तस्वीर उनकी है, नाम नरेंद्र मोदी जी का है। तो इसमें हर जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो पूरी ही कहीं ना कहीं सबके इनपुट से ही हुआ है। लेकिन ये जो इनॉग्रेशन हुआ है नमो ऑक्सीजन पार्क का, ये दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रेजेंस थी, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थे, और ये काम एक ऐसी अथॉरिटी कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों ही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दिल्ली सरकार हो, डीडीए हो, सब में ही क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन कर रहा है। बिल्कुल वेदांत, लास्ट में जाते जाते आप ये मानेंगे कि ये एक अच्छी नियत से किए हुए काम के पीछे एक डिसऑनेस्टी, एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना फर्ज से बेईमानी वाली बात दिखती है, कि आप बदनीयती से दिखा रहे हैं आप कि आप अच्छी नियत से कर रहे हैं, आप प्रस्तुत उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि देखो मेरी भलमनसाहत, लेकिन आप एक बात छुपा रहे हैं। यहां आपकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है। जी, और जैसा कि मतलब मुझे देखिए, पॉलिटिशियंस का काम है किसी चीज़ को स्पिन देना,
तो अब वो ये पेड़ लगा रहे थे, तो क्योंकि हमने बार-बार हमको पता ही है कि बीजेपी की जो पीआर मशीनरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो उनको इस तरह के आइडियाज़ लगातार जो हैं वो आते रहते हैं। वो हर चीज़ में देखते हैं कि हम किस तरह से अपना जो नैरेटिव है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखें। यहाँ तक कि जब वो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की आलोचना हुई थी कि वो वहाँ पर जाके जो है फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर वो प्लेन का एक हिस्सा मिला था, वहाँ पर जाके वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो क्रिटिसिज्म उनका होता है हर चीज़ में। अब वो इलेक्शन के दौरान 2024 में जब वो मेडिटेट करने गए थे, अपने काशी के इलेक्शन के पहले, तब वहाँ मेडिटेट भी कर रहे थे, तो उसको भी एक बहुत बड़ा मीडिया नैरेटिव की तरह चलाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मेडिटेट कर रहे हैं और वो भगवान से शक्ति मांग रहे हैं कि मैं इस देश को तीसरी बार अच्छी तरह से गवर्न कर सकूं। तो ये बीजेपी का पीआर बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा से, और पॉलिटिशियंस का काम है कि वो किसी चीज को एक स्पिन दे। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट भी हुआ, सबने यही रिपोर्ट किया कि दिल्ली गेट्स न्यू ऑक्सीजन पार्क्स, दिल्लीज ग्रीन कवर एक्सपैंड्स। तो ये एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि आपका नेट तो सेम ही रहा। अब आपने 1100 पेड़ पहले काट दिए, उसकी जगह आप कॉम्पेंसेटरी अगर लगा रहे हैं पेड़, तो एक्सपेंशन नहीं हुआ ग्रीन कवर का ये किसी तरह से। तो एक तरह से कोई एनालिस्ट ये भी कह सकता है कि भाई पॉलिटिशियन का काम है कि वो हर साम दाम दंड भेद कैसे भी करके वो अपना नैरेटिव सामने फैलाए। तो उन्होंने ठीक किया अपने हिसाब से कि वो पेड़ लगा रहे थे, उन्होंने सोचा हम इसमें क्यों ना इसको हम एक ऑक्सीजन पार्क की तरह प्रेजेंट करें, एक इनिशिएटिव की तरह प्रेजेंट करें। लेकिन क्योंकि उसमें उसके रिपोर्टाज में भी ये चीज़ सामने नहीं आई, तो वहां पर भले ही वहां पर आप कह सकते हैं कमी है, और आप इंटेग्रिटी क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट की कि वो कोई बात छुपा रहे हैं या वो उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो रियल पॉलिटिक है उसमें लोग कह सकते हैं कि ये सब ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से काम है कि वो इनिशिएटिव्स को कुछ भी करके वो अपनी ब्रांडिंग और नैरेटिव ऐसा बनाएं कि लोग सोचें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन एक्सपोजे किया है आपने, हरियाली एक्सपोजे आपने किया है, इसके लिए वेदांत आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने जब कल ये रिपोर्ट देखी तब एकदम से मेरा मन किया कि रिपोर्ट तो आपने अंग्रेजी में फाइल की है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपकी अंग्रेजी हमेशा से रही है, लेकिन क्योंकि हिंदी भी इतनी दुरुस्त है, इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश थी कि ये ज़रा हिंदी में भी दर्शकों को बताया जाए कि देख लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन और हरियाली और नमो पार्क, ऑक्सीजन पार्क की बात, उसके पीछे की छुपी हुई सच्चाई क्या है, वो वेदांत ने एक्सपोज करके यहां पर रख दिया है। वेदांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए और बहुत ही विस्तार से सारी चीजों को समझाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।